Actually, in our last class, we discussed about the Coulomb law and the electric field intensity due to a point charge and discrete number of charges. It means that when we have a point charge, when we have a source charge, and when we have a discrete number of charges, how can we find out the electric field intensity at a point due to that point charge or due to those discrete number of charges? So we discussed the electric field intensity due to a point charge and discrete number of charges. In today's class, we will discuss about the field due to a line charge and continuous volume charge distribution. Now, what does it mean? अगर आप स्क्रीन को देख लें, if we now visualize a region of space filled with a tremendous number of charges separated by minute distances, such as the space between the control grid and the cathode in the electron gun assembly of a cathode ray tube operating with space charge, we see that we can replace this distribution of very small particles with a smooth continuous distribution described by a volume charge density. Just as we describe water as having a density of 1 gram per cubic centimeter. Even though it consists of atomic and molecular sized particles, we are able to do this only if we are uninterested in small irregularities in the field as we move from electron to electron, or if we care little that the mass of the water actually increases in small but finite steps as each molecule is added. अब इस बात का क्या मतलब है? क्योंकि इस बंदे ने काफी लंबी बात की है, तो इसको आसान कर लेते हैं. It means that let's suppose we have a tremendous number of charges. मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा चार्जेस हैं and those charges are distributed over a volume or over a surface or over a line. मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा charges हैं and we can consider those charges as continuous number of charges, not discrete charges. तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा चार्जेस हैं जो या एक वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसी केस में हम क्या करते हैं? सो लेट्स सपोज वी हैव अ वॉल्यूम एंड द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस वॉल्यूम. तो हम क्या करते हैं कि ये जो वॉल्यूम है जिस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसीडर करते हैं. We actually consider the volume charge density and we define the volume charge density as the differential charge divided by the differential volume as the volume approaches to 0. Now what does it mean? It means that ये हमारे पास एक वॉल्यूम है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक डिफरेंशियल वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं और इसी डिफरेंशियल वॉल्यूम को मैं डिनोट करता हूं del V से. Now we have selected a differential volume and this differential volume will include some differential charge. तो उसी differential charge को मैं represent करता हूं del Q. Now what will be the volume charge density of this volume? So the volume charge density of this volume will be del Q by del V. The differential charge per unit, the differential volume as the volume approaches to 0. हम वॉल्यूम को स्मॉल क्यों रखते हैं? हम वॉल्यूम को इसलिए स्मॉल रखते हैं ताकि हमारे पास ये एक डिफरेंशियल वॉल्यूम है. तो अगर हमने टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो, अगर हमने क्यू फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करते हैं कि अगर इसी रिलेशन को हम देख लें, तो इससे हम लिख सकते हैं del Q is equal to rho V into del V. तो अगर हम टोटल चार्जेस फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मतलब इसी वॉल्यूम पे टोटल चार्ज कितना है, तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारे पास ये जो इंटीग्रल होगा दिस विल एक्चुअली बी द वॉल्यूम इंटीग्रल. सो द टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. The total charge will be equal to
द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसी तरह अगर चार्जेस एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसी केस में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं, या अगर चार्जेस when we have a continuous number of charges and those charges are distributed over a line, तो उसी केस में हम लाइन चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे. So this was all about the volume charge density and the total charge, that how can we find the total charge that is distributed over a volume. यहां तक मेरी बात की समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। अच्छा. अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे. When we have a continuous number of charges and those charges are distributed over a volume, तो उसकी वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें सोर्स चार्ज की जरूरत होती है. तो हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ डिफरेंशियल चार्ज and the position of this differential charge is at a distance g. r dash. The position of this differential charge is at a distance r dash from the reference point, and we have to find the electric field intensity at this point, which is at a distance r from the reference point. So जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें इस डिस्टेंस की जरूरत है. सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r minus r dash. We have the differential charge and we have to determine the differential electric field intensity at this point P due to this differential charge. So अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो तो we know that the electric field intensity due to a point charge is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught r square into its unit vector AR. Now in this case r vector is actually r minus r dash. So what will be its unit vector? Vector divided by its magnitude. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डिफरेंशियल चार्ज del Q will be equal to del E will be equal to del Q divided by 4 pi epsilon naught r minus r dash whole square into its unit vector. Now we are considering the charges that are distributed over the volume. तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जब हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कंसीडर करते हैं तो उसी केस में हम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे. But here we have the volume charge density, so we will represent the differential charge in terms of its volume charge density. So del Q will be equal to rho V into del V. बाकी formula same. Now if we sum the contributions of all the volume charge in a given region and let the volume element del V approaches zero, as the number of these elements become infinite, the summation becomes an integral. याद रखें कि हमारे पास जब फाइनाइट नंबर्स हो और उन फाइनाइट नंबर्स को हमने ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, समेशन साइन यूज करते हैं. बट इफ वी हैव इन इनफिनिट एलिमेंट्स, अगर हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट्स ना हो, इनफिनिट एलिमेंट्स हो, तो उसी केस में हम समेशन की जगह इंटीग्रल यूज करते हैं. सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंशियल वॉल्यूम, मतलब ये हमारे पास एक टोटल वॉल्यूम है, इसमें हम डिफरेंशियल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं. हर एक डिफरेंशियल वॉल्यूम में एक डिफरेंशियल चार्ज होगा. तो अगर हम इनको सम कर लें, सो जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी लाइक दिस. एंड वी हैव an infinite number of differential volume, so हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल यूज करेंगे. हम समेशन यूज नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम इंटीग्रल यूज करेंगे. बिकॉज समेशन हम तभी यूज करते हैं when we have a discrete number of charges. When we have continuous number of charges that are distributed over a volume, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे. तो जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो
इसी फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज एक्चुअली द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a continuous distribution of charges that are distributed over a volume. इस बात की समझ आ गई? हाँ या ना, कुछ बोले, समझ आ गई कि नहीं? जी सर। यस सर आगे. सही है, चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू the continuous volume charge distribution. Now we have the field due to a line charge. When we have a line charge, how can we find the electric field intensity due to a line charge? मतलब let's suppose हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, एक चार्ज कंडक्टर, मतलब इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है. When we have a continuous distribution of charges that are distributed over this conductor, but if the radius of this conductor is too small, मतलब इसका जो रेडियस है ये too small है, तो इसी कंडक्टर को हम एज अ लाइन चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. अगर इसी कंडक्टर का रेडियस स्मॉल है तो इसी कंडक्टर को हम एज अ लाइन चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. मतलब इसका अपना वॉल्यूम होगा इसी कंडक्टर का, लेकिन चूंकि कंडक्टर का रेडियस बहुत कम है तो इसी कंडक्टर को हम लाइन चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. अब इसी लाइन चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सो लेट्स लुक एट दिस स्लाइड फर्स्ट. लेट अस assume a straight line charge extending along the z-axis. Let us assume a straight line charge extending along the z-axis in a cylindrical coordinate system from minus infinity to plus infinity. We desire the electric field intensity at any and every point resulting from a uniform line charge density rho L. एक straight line charge है जो z-axis पे placed है. So we have a straight line charge that is placed along the z-axis from minus infinity to plus infinity. And we have to find the electric field intensity at any and every point due to this line charge. Now remember that जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अगर उसी प्रॉब्लम में हम सिमेट्री कंसीडर करते हैं तो वो प्रॉब्लम इजियर हो जाता है एज कंपेयर टू जब हम सिमेट्री कंसीडर नहीं करते. तो पहले हम सिमेट्री की बात करते हैं, उसके बाद मतलब नॉन सिमेट्रिकल केस कंसीडर करेंगे. अभी हमारे पास एक लाइन चार्ज है जो z एक्सिस पे प्लेस्ड है और इसी लाइन चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एक पॉइंट पे, चाहे जो भी पॉइंट हो. बट पहले हम क्या करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री कंसीडर करते हैं. Symmetry should always be considered first in order to determine two specific vectors. The first one, with which coordinates the field do not vary and which components of the field are not present. The answers to these questions then tell us which components are present and with which coordinates they do vary. So, what does it mean? Remember that we are using the cylindrical coordinate system. जब भी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करते हैं. तो इसी केस में हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये प्रॉब्लम हम सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करेंगे बिकॉज ये प्रॉब्लम इसकी जो सिमेट्री है दैट इज एक्चुअली सिलेंड्रिकल. किस तरह वो अभी मैं आपको बताता हूँ. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं पहले मुझे ये बताएं. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? I am asking from you people. Sir, R, phi, Z. Rho, phi और g. These are actually the coordinates of a cylindrical coordinate system. तो अगर इसी लाइन चार्ज की वजह से हमने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, सो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी कंपोनेंट्स होंगे, मतलब चूंकि ये 3 कोऑर्डिनेट्स है, सो वी विल हैव द रो कंपोनेंट, वी विल हैव द फाई कंपोनेंट एंड वी विल हैव द जी कंपोनेंट। इस बात की समझ आ गई कि चूंकि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये कोऑर्डिनेट्स होंगे रो, फाई और जी। और चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो चूंकि ये कोऑर्डिनेट्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो कंपोनेंट्स होंगे वो ये कंपोनेंट्स होंगे, ई रो कंपोनेंट, ई फाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। अब जब हम सिमेट्री कंसीडर करते हैं, सो व्हाट डज दिस सिमेट्री मीन? दिस सिमेट्री मींस दैट वी विल look at two specific vectors along which coordinate the field is varying and along which coordinate the field is not varying. So we have three coordinates, we have the rho coordinate, we have the phi coordinate and we have the z coordinate. तो पहले हम क्या करते हैं कि रो कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट को हम फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और फाई कोऑर्डिनेट को हम चेंज करते हैं, और हम ये देखते हैं कि जो हमारा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा। सो जो लाइन चार्ज है दैट इज प्लेस्ड along the z axis, so if we change the phi coordinate, it means that this is actually the angle phi. So इसी तरह जब इस तरह मूव करेंगे तो हमारा phi coordinate चेंज होगा। Now if we look at the line charge from every angle, अगर हम इसी लाइन चार्ज को हर एंगल से देख लें, this line charge will appear the same. ये जो हमारा लाइन चार्ज है, this will appear the same. और चूंकि जब लाइन चार्ज सेम अपीयर होगा, सो देयर विल बी नो चेंज इन द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज अलोंग द फाई कोऑर्डिनेट। अगर हम रो कंपोनेंट, रो और जी कोऑर्डिनेट को फिक्स रख लें और अगर हम फाई चेंज कर लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज द लाइन चार्ज अपीयर्स द सेम फ्रॉम एवरी एंगल। By changing the phi coordinate, the line charge appears the same. Now, अब हम क्या करते हैं? अब हम रो और फाई को फिक्स करते हैं, रो और फाई को फिक्स करते हैं और z coordinate को चेंज करते हैं। It means that if we fix the rho and phi coordinate, if we make these coordinates constant and if we move along the z axis, मतलब if we move along the z axis up and down, अगर हम इस पे ऊपर या नीचे जाएं, so again the line charge remains the same. There will be no changes in the field. There will be no change in the field. So it means that by changing the phi coordinate and by changing the z coordinate, please mute your mics. तैयब अली, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? So by changing the phi coordinate and by changing the rho coordinate, by changing the phi coordinate and by changing the z coordinate, the line charge appears the same and there will be no change in the field. Now, if we make these two coordinates constant, अब अगर हम phi को constant रख लें, z को constant रख लें और अगर हम rho को change कर लें, by changing the rho, it means that if we move away from the line charge or if we move towards the line charge, what do you think? The field will change or not? If we move away from the line charge or if we move towards the line charge, the field will change or not? Is there anybody to answer? आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं कि नहीं? सर सुन रहे? जब सुन रहे हैं तो कम से सच्ची होगा? कम ये तो मुझे बताएं कि जब लाइन चार्ज से हम या दूर जाएंगे या करीब आएंगे तो फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा? सर चेंज होगा।
चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि जब लाइन चार्ज से हम दूर जाएंगे तो जो फ्यूल है वो डिक्रीज करेगा, जब हम लाइन चार्ज के करीब आएंगे तो जो फ्यूल है वो इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सो अगर हम फाई और जी कोऑर्डिनेट को फिक्स रखते हैं और रो कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं, सो आवर फील्ड विल चेंज। सो दिस इज एक्चुअली द सिमेट्री। के सिमेट्री हम किस तरह कंसीडर करते हैं, दैट जब हम फाई चेंज करते हैं तो हमारा फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब हम जी चेंज करते हैं कि तो हमारा फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब हम रो चेंज करते हैं तो हमारा फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो बाय चेंजिंग द रो कोऑर्डिनेट और इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज। नाउ the second factor, which component of the electric field is present? EO, E phi and EG। ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, एक प्रेजेंट होगा, दो प्रेजेंट होंगे या तीनों प्रेजेंट होंगे। So let's discuss the second factor, that which component of the electric field will be present। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम E phi की बात करते हैं। Let's suppose at this point we have to determine the electric field intensity। तो हमारे पास phi component होगा कि नहीं होगा। So remember that this is actually the phi component, E phi। So in order to produce the E phi component, we must have some charge here। और अगर ये चार्ज इसी पॉइंट पे फोर्स एक्सर्ट कर ले तो हमारे पास E phi कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। लेकिन जितने भी चार्जेस हैं वो सारे अलोंग द जी एक्सिस प्लेस्ड है, जितने भी चार्जेस हैं वो सारे अलोंग द जी एक्सिस प्लेस्ड है, और यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे या यहाँ पे जो हमारे पास E phi कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो इसी डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, हमारे पास जो E phi कंपोनेंट है that will be 0। It means that there will be no E phi component because there is no charge other than the line charge to produce a force at this point. So there will be no E phi component. Now if we talk about the EG component, remember that there will be EG components, but the EG components will cancel out each other। क्यों? क्योंकि ये जो line charge है, the line charge is actually from minus infinity to plus infinity। तो अगर हम यहाँ पे एक डिफरेंशियल चार्ज लें, तो इसी डिफरेंशियल चार्ज की वजह से इसी पॉइंट पे इजी कंपोनेंट होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव साइड पे अगर हम डिफरेंशियल चार्ज लें तो इसी के लिए नेगेटिव साइड पे भी डिफरेंशियल चार्ज होगा, जो जिसकी वजह से इजी कंपोनेंट अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो चूंकि ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं, तो इसलिए जो हमारा इजी कंपोनेंट है वो भी 0 होगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि जो हमारा लाइन चार्ज है दैट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल वॉल्यूम। तो अगर हम पॉजिटिव साइड पे एक डिफरेंशियल चार्ज लें, द सेम चार्ज इज आल्सो देयर ऑन द नेगेटिव साइड, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट्स कैंसल आउट कर लेते हैं, जो इजी कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं। सो देयर विल बी नो इजी कंपोनेंट, सो देयर विल बी नो ई phi component, there will be no easy component, both these components will be 0। The only component will be the E row component। So जब हम along the row coordinate जाते हैं तो हमारा फील्ड चेंज करता है, और सिर्फ रो कंपोनेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रेजेंट होगा। अब ये रो कंपोनेंट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? हाउ कैन वी डिटरमिन दिस रो कंपोनेंट? सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सिमेट्री। कि अगर हम सिमेट्री को कंसीडर नहीं करते तो हम ये तीनों कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, ई रो कंपोनेंट, ई phi कंपोनेंट और इजी कंपोनेंट। अगर हम सिमेट्री को कंसीडर नहीं करते, फिर बाद में जब हमारा रिजल्ट निकल आएगा तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास सिर्फ ई रो कंपोनेंट है, बाकी जो कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी तरह हमें ये भी पता नहीं होता कि along which coordinate the field will change and along which coordinate the field will not change। तो ये चीजें हमें सिमेट्री से पता लगती है। तो जब हम सिमेट्री कंसीडर करते हैं तो जो हमारे कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाते हैं। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसी ई रो कंपोनेंट को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? अगर मीटिंग एंड हो जाए तो इसी लेंथ को दोबारा ज्वाइन कर लेना। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो इसी लेंथ को दोबारा ज्वाइन कर लेना। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। नाउ
हम क्या करते हैं, वी हैव द लाइन चार्ज, और हम क्योंकि सिमेट्री कंसीडर करते हैं तो इसलिए हम ये पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट पी। हम ये पॉइंट पी सेलेक्ट करते हैं, और ये पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है, 0y0, और इसी पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। तो जब भी हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि एक डिफरेंशियल चार्ज सेलेक्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये डिफरेंशियल लेंथ सेलेक्ट करता हूँ dl, एंड dl इज इक्वल टू dg डैश। मतलब अगर ये डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट g डैश है, मतलब अगर ये पॉइंट g डैश है, तो अगर g डैश में हम थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, so this small portion will be dg dash. So here dl is equal to dg dash, and we know that this dg dash will possess some charges dq. मतलब ये जो स्मॉल पोर्शन हम लेते हैं, ये जो डिफरेंशियल लेंथ हम लेते हैं dg dash, इसी डिफरेंशियल लेंथ पे कोई ना कोई चार्ज होगा, कोई ना कोई डिफरेंशियल चार्ज होगा, एंड दैट डिफरेंशियल चार्ज इज dq। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये डिफरेंशियल चार्ज सेलेक्ट करते हैं जो अवेलेबल है dg डैश पे, और इसी डिफरेंशियल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं इसी पॉइंट p पे। So how can we find the electric field intensity at this point P, the differential electric field intensity at this point P due to this differential charge? तो उसके लिए हमें इस डिस्टेंस की जरूरत है, and this distance is actually r minus r dash। जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, that is at a distance r, the differential charge is at distance r dash, so r will be equal to r minus r dash। अब अगर इसी फिगर को देखें हम, चूंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, so r is equal to y a y is equal to rho a rho। ये जो r है वेक्टर r, this vector r is equal to y a y in Cartesian coordinate system, but actually we are talking about cylindrical coordinate system, so this r will be equal to rho a rho, magnitude into its unit vector। So this is the vector r, the vector r dash is actually z dash a z, because ये जो हमारा पॉइंट है, this is actually 0 0 z dash। तो जो हमारा r dash वेक्टर है, that is actually z dash a z। So what will be r minus r dash? r minus r dash will be equal to rho a rho minus r minus r dash will be equal to rho a rho minus z dash a z। And what will be its magnitude? r minus r dash का magnitude, so it will be equal to rho square plus z dash square under the root। Now we know, क्योंकि हमने एक डिफरेंशियल चार्ज सेलेक्ट किया हुआ है, so what will be the differential electric field intensity at this point? It will be equal to dq divided by 4 pi epsilon naught r square into ar। So dE, the differential electric field intensity is equal to rho l into dg dash। मतलब dq को हम रिप्लेस करते हैं, dq को हम रिप्लेस करते हैं rho l into dg dash, क्योंकि हम जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे हम चार्ज डेंसिटी लेते हैं। यहाँ पे चूंकि लाइन चार्ज है तो यहाँ पे हम लाइन चार्ज डेंसिटी लेंगे। सो dq डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू ar। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू r माइनस r डैश डिवाइड बाय r माइनस r डैश होल क्यूब, और डेल q को हम लिखते हैं रो l इनटू dg डैश। ये बातें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली, दैट r is equal to y a y and r dash is equal to d dash a z। So r minus r dash is equal to rho a rho minus d dash a z, और r minus r dash का magnitude that will be equal to rho square plus d dash square। So dE is equal to this term। Now if we look at this term, we have already considered the symmetry। Symmetry पहले से हमने consider कर ली है, तो अगर हम इसी वेक्टर को, अगर हम इसी dE को देख लें, तो इसके असल में दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए रो कंपोनेंट है, एक ए जी कंपोनेंट है। तो हमें ये भी पता है कि ए जी कंपोनेंट एक्चुअली कैंसल्स आउट ईच अदर, तो यहाँ पे हम सिर्फ ए रो कंपोनेंट ही लेंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इसी चीज के बराबर होगी।
rho L into rho dV dash divided by 4 pi epsilon naught rho square plus d dash square whole 3 by 2. अब चूंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दी होल लाइन चार्ज, तो हम क्या करेंगे कि इसी डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द होल लाइन चार्ज। क्योंकि पहले हमने एक डिफरेंशियल चार्ज लिया हुआ था, तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यू टू द लाइन चार्ज, तो हम क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। So this is actually the integration from minus infinity to plus infinity. And if you people solve this integration, our electric field intensity E rho will be equal to rho L divided by 2 pi epsilon naught rho into A rho. This will be our electric field intensity. अब इसी इंटीग्रेशन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा और ये आपने खुद से इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है कि इस इंटीग्रेशन को हमने किस तरह सॉल्व करना है, बट रिजल्ट हमारे पास यही आएगा। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द होल लाइन चार्ज। मीटिंग एंड हो रही है, काइंडली ज्वाइन द मीटिंग अगेन।